کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا ایار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، ادھر جو آگے بیٹھے ہیں دوست وہ بہت اچھا سن رہے ہیں، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ داد نہیں دیں گے، تو تھوڑا سا آپ سب کی بھی شرکت ہو۔ جو صوفے پہ بیٹھے ہیں اگلی صفوں میں وہ بھی تھوڑا شرکت کریں۔ ادھر جو لوگ کھڑے ہیں تھوڑی دیر، میں نے کہا نا میں بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں اور صبح یہاں سے پھر بھاگوں گا تو کل شام 5 مطلب آج کی شام 5 بجے مجھے کیرل میں رہنا ہے، تو بہت لمبا سفر ہے۔ آپ دعا دے کے بھیجیں گے تو شاید مجھے لگے گا کہ میرا آنا جو ہے وہ سفل رہا۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ یہاں بہت دن بعد امن سے ملاقات ہوئی، پیارے چھوٹے ساتھی۔ یہ ہمارے بسواں میں سیتا پور میں ایک آدھ بار مشاعرے میں ملاقات ہوئی۔ میئر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تمام پرانے لوگ۔ میں عارف کا اس بات کے لیے خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا کہ آج جو زمین سے جڑے ہوئے مشاعرے جہاں سے ہم جیسے لوگ پیدا ہوئے اور ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت میں پہنچے، ہمارے پہنچنے میں آپ جیسے بنیادی لوگوں کا ہاتھ ہے، آپ کی دعائیں شامل ہیں، تب جا کر کے آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کی دعا کے بھروسے بول رہے ہیں، آپ کی آواز بن کر کے بول رہے ہیں۔ یہ آپ کی دعاؤں کے وجہ سے ہوا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ سے جوڑنے کی۔ میں خاک بسر نامی و مشہور بھی نہ تھا، میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا۔ میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا، جلتا رہا چراغ کی مانند ہر طرف، بجھنا میرا خدا کو تو منظور بھی نہ تھا۔ اس نے کسی مقام پہ بجھنے نہیں دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس نے بجھنے نہیں دیا،
आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद निदा मिंबर व मेहराब किताब से कुछ बेहतरीन बातें सुनते हैं। शोहर बेचारे। अखबारात में एक वाक़या का बड़ा चर्चा हुआ था। वो ये कि एक औरत ने तलाक हासिल करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दी। जज ने पूछा, मोहतरमा, आप आखिर अपने शोहर से बरसों के बंधन को क्यों तोड़ना चाहती हैं? इस बेचारे की ज़ात से आपको क्या तकलीफ़ पहुंची है? खातून ने जवाब दिया, मेरा संगदिल शोहर मेरे प्यारे कुत्ते को पसंद नहीं करता। कोई औरत कहती है कि मेरा शोहर सोते में ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेता है, लिहाजा मुझे तलाक दिलवाई जाए। कोई औरत शिकायत करती है कि मेरे शोहर के हंसने का अंदाज़ अच्छा नहीं है। किसी को शिकवा है कि मेरा शोहर खाना अच्छा नहीं पका सकता, ना कपड़े धो सकता है। ऐसे वाक़यात भी पेश आए कि बीवियों ने शोहरों की पिटाई लगा दी। हमने पढ़ा और सुना था कि ऐसे ही सताए हुए शोहरों ने बीवियों के जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ जुलूस निकाला। वो नारे लगा रहे थे कि हमें बीवियों की ज़्यादतियों से निजात दिलाई जाए। जब इस्लाम के कानून फितरत से बगावत की जाएगी तो ऐसे वाक़यात ज़रूर रूनुमा होंगे। मर्द आज़ाद नहीं है। इस्लाम ने तलाक का इख्तियार मर्द को दिया है, लेकिन इसको मार्शल लॉ एडमिनिस्टर नहीं बनाया है कि इसको जैसे चाहे इस्तेमाल करता रहे। इस सिलसिले में सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये इरशाद फरमाई कि जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई है इनमें तलाक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शय है। और नापसंदीदा इसलिए कि तलाक से दो फ़र्द जुदा नहीं, दो ख़ानदान जुदा हो जाते हैं, दो कबीलों के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, बच्चे तरबियत से महरूम हो जाते हैं और जुदाई के बाद मियाँ बीवी के ज़िना और बदकारी में मुब्तला हो जाने का ख़तरा हो जाता है। और कहते हैं कि शैतान किसी बुराई पर इतना खुश नहीं होता जितना खुश उस वक्त होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई वाक़ हो जाती है। तो मर्द को शोहर होने की हैसियत से ये बात बता दी गई है कि बिला वजह तलाक देना अल्लाह ताला की इंतहाई नाराज़गी का सबब है। लेकिन अगर वो बिला वजह तलाक दे ही देता है तो उसे ताज़ीज़ लगाई जा सकती है और ये ताज़ीर हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उसे ज़बानी तौर पर शर्मिंदा किया जाए, बुरा भला कहा जाए। ये भी हो सकता है कि उसे कोड़े लगाए जाएं। ये भी हो सकता है कि इसे कुछ अरसा के लिए जेल में डाल दिया जाए। फिर शोहर को ये भी हुक्म है कि अगर तलाक की ज़रूरत पेश आ भी जाए तो बीवी को राह रास्त पर लाने के लिए पहले दूसरी तदबीरें इख्तियार करो। फरमाया, और जो औरतें ऐसी हों कि तुमको बददिमागी का एहतमाल हो तो उनको ज़बानी नसीहत करो और उनको उनके लेटने की जगह में तन्हा छोड़ दो और उनको मारो। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करना शुरू कर दें तो उन पर बहाना मत ढूंढो। बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़े रफ़अत और अज़मत वाले हैं। इसके अलावा किसी को हुक्म बनाकर बीच में डालो जो ताल्लुकात की दुरुस्तगी को ही सूरत निकाले। और अगर तुम ऊपर वालों को उन दोनों मियाँ बीवी में कशाकश का अंदेशा हो तो तुम लोग एक आदमी जो तस्फिया करने की लियाकत रखता हो मर्द के ख़ानदान से और एक आदमी जो तस्फिया करने की लियाकत रखता हो औरत के ख़ानदान से भेजो। अगर इन दोनों आदमियों को इस्लाह मंजूर होगी तो अल्लाह ताला उन मियाँ बीवी में इत्तिफाक पैदा फरमा देंगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़े इल्म और बड़े ख़बर वाले हैं। यानी बजाय इसके कि मियाँ बीवी अपनी इज्जत ख़राब करें, अपने राज़ों को अदालत में तशित अज़बाम करें, इससे बेहतर यह है कि वो इस्लाह की ख़ुद को कोई सूरत निकालें या किसी को हुक्म तस्लीम करके इससे फ़ैसला करवाएं। इस वक्त तलाक के सारे मसाइल अर्ज़ करना मकसूद नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह इस मौजू पर किसी दूसरी नशिस्त में मुस्तकिल गुफ्तगू होगी। बताना ये चाहता हूँ कि इस्लाम ने मर्द को तलाक का इख्तियार देकर शुतुर बेमुहार नहीं बनाया, बल्कि हकीकत तो यह है कि वो शुतुर बेमुहार बना हुआ था। इस्लाम ने उसे नकील डाली है और कुछ क़यूद और हुदूद का उसे पाबंद बनाया है। लेकिन ये बात तो हर शख्स तस्लीम करेगा कि बाज़ औक़ात ऐसे हालात पेश आ जाते हैं और ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं कि तलाक के सिवा कोई चारा ही नहीं रहता। ऐसी सूरत में तलाक की इजाज़त है, लेकिन उसके लिए शराइत हैं, ख़ास तरीक़ा है। मसलन जो महर औरत को दिया था
وہ واپس نہ لے، حیض کے زمانے میں طلاق نہ دے، 3 تھروں میں ایک ایک طلاق دے۔ اور پھر شوہر کو یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو گئیں تو اب عورت بغیر حلالہ کے تمہارے نکاح میں نہیں آ سکے گی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔